Hello everyone and welcome to my channel. In today's class we are going to discuss parts of speech. Parts of speech के बारे में आपने पढ़ा होगा कि what are parts of speech and why we use parts of speech. If I talk about parts of speech, no matter whether it is about writing or whether it is about speaking, in both cases we use some words and we use those words in specific order or in specific structure. I can say that parts of speech is related to the categorization of different words with respect to meaning or with respect to function. तो मैं इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास यानी वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में या वो वर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखने का नाम है और उन वर्ड्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में इस बेस पे पुट करते हैं कि उन वर्ड्स का फंक्शन क्या होता है, उन वर्ड्स के या उन अल्फाजों के मीनिंग क्या होते हैं. तो मीनिंग के बेसिस पे हम उन वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में पुट करते हैं और इस तरह सिस्टम को या पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. Those figures that we are used while we are speaking or writing. So it refers to the category of words based on their function in a sentence. Let's suppose there is a sentence, I have been studying English for 10 years. So here I have given a specific sentence which refer to different parts of speech. इस sentence में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं. लेट्स सपोज द सेंटेंस बिगिंस विद आई एंड आई इज़ अ प्रोनाउन. हैव एंड बीइंग दे आर हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑन द अदर हैंड साइड स्टडिंग इज़ मेन वर्ब और एक्शन वर्ब. There is another word that is English. English is a noun or it is a proper noun. For is a preposition. 10 is a adjective or adjective of number or numerical adjective. Years is also a noun. So it means that when we combine different words in a specific pattern, in a specific structure, in order to convey our meaning in a comprehensive or clear way. जब भी हम चाहते हैं कि हम अपने स्पीच को, हम अपने राइटिंग को ज़्यादा कम्प्रहेंसिव तरीके से कंस्ट्रक्ट करें, ज़्यादा कम्प्रहेंसिव तरीके से डिलीवर करें, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, यानी वर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरी से पिकअप करते हैं और उनको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पुट करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच रेफर्स टू द कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स in different structures or sentences in order to make our verbal or written structure more comprehensive and effective, informative as well as understandable. There is a question that how many parts of speech do we have? There are 8 primary parts of speech in English grammar. Here I have given them into two different parts. On the left hand side there is a noun, adjective, verb, adverb. On the other hand side we have pronouns, preposition, conjunction, interjection or article. So on the basis of their meaning or on the basis of their function as well as on the basis of their development or on the basis of their construction, I have put them into two different categories. So इसको हम दो क्लासेस में या दो कैटेगरी में इस वजह से डिवाइड करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, इसमें हमेशा नए नए वर्ड्स डेवलप होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेट्स सपोज व्हेन साइंटिफिक डिस्कवरी टेक प्लेस, एज विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट्स सपोज देयर कम्स or there may take place social, cultural or economic changes. So with respect to those changes, we develop new words like nouns, adjectives, verbs and adverbs. जिस तरह साइंस तरक्की करता है, साइंस नई नई चीज़ें ईजाद करता है, so the invention of new objects, new things, so the different words they become part of a particular dictionary, suppose English dictionary. तो इस वजह से यानी इन वर्ड्स में, यानी इन ग्रुप में, इन कैटेगरीज़ में हमेशा क्या होती हैं, नए नए वर्ड्स कोइन होते हैं, न्यू वर्ड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, इनमें डेवलपमेंट होती हैं. इसका मतलब है कि एक क्लास फिक्स क्लास नहीं है, एक क्लास हमारे पास क्लोज क्लास नहीं है, इसमें हमारे पास हमेशा नए वर्ड्स क्या आते हैं, ऐड हो सकते हैं. लेट्स सपोज देयर इज़ अ वर्ड लैपटॉप, देयर इज़ अ वर्ड गूगल. So when there was no invention of laptop, there was no such word in the English dictionary. So after the invention of laptop, English grammarians or English linguists, they adopted this word and
later on it became part of the English dictionary. इस तरह हमारे पास Google, when there was no invention of Google, so there was no word Google in English dictionary. So after the invention of Google, when someone designed Google, तो उसके बाद यानी गूगल को हम एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ नाउन भी। तो इस तरह इसका मतलब है कि इस क्लास में नए वर्ड्स ऐड हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई दिस क्लास इज़ नोन एज ओपन क्लास सिस्टम। लेट सपोज एडजेक्टिव के बारे में ऑसम है, एक्सपेंसिव हैं, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए आप डिफरेंट एडजेक्टिव ला सकते हैं, नए एडजेक्टिव कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। लेट सपोज देयर इज़ अ वर्ड डू, तो डू के साथ मैं कुछ और ऐड करूँ, मैं नया वर्ब बना सकता हूँ। लेट सपोज डू गिव्स पॉजिटिव सेंस, अगर मैं प्रीफिक्स अन ऐड करूँ तो इसका मतलब है अनडू। अनडू मीन्स यानी नेगेटिव मीनिंग एसोसिएट होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कैटेगरी है फिक्स कैटेगरी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास हमेशा नए वर्ब कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। तो जिस तरह हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, तो इस तरह हम नाउन से वर्ब भी बना सकते हैं। लेट सपोज देयर इज़ अ वर्ड टीच, तो टीच के मैं डिफरेंट न्यू फॉर्म्स बना सकता हूँ। लेट सपोज टीचिंग, टॉट, इवन टीचर, वर्ब से मैं नाउन बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये कैटेगरी ओपन है, यहाँ पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स ऐड हो सकते हैं। और देयर इज़ अ वर्ड लकीली और वेल, दीज आर एडवर्ब्स। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप डिफरेंट एडवर्ब्स, नए एडवर्ब्स बना सकते हैं, या इवन नए एडवर्ब्स डिक्शनरी का पार्ट बन सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड साइड, इफ़ यू लुक एट दीज वर्ड्स, let's suppose this class is known as closed class system. Why? Close means that we cannot add new words in this particular category. For example, the personal pronoun, 7 personal pronoun, let's suppose we have in English grammar. Again, in this modern era, or in this postmodern era, we study those particular words. Let's suppose there is a personal pronoun, there is a person pronoun I in a first person pronoun, there is a second person pronoun you, there is a third person singular pronoun she. तो ये हमने पहले इंग्लिश में भी यही पढ़े थे, स्टिल हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें कोई एडिशन नहीं होती, यानी इस वजह से हम प्रोनाउन कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू क्लोज क्लास सिस्टम। और देयर इज़ अ वर्ड सिंस, बाय, फॉर, लेट सपोज दीज आर प्रेपोजिशंस। सो इन प्रेपोजिशंस में यानी कोई एडिशन नहीं होती, वही प्रेपोजिशन तकरीबन जो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं वही प्रेपोजिशन हम डिस्कस करते हैं। नो मैटर, हम कंपाउंड प्रेपोजिशन बना सकते हैं, या इवन प्रेपोजिशन फ्रेजेस हम बना सकते हैं, लेकिन वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या वो प्रेपोजिशनल कंपाउंड प्रेपोजिशंस हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कोई नया एडिशन नहीं हो रहा। देयर इज़ अ वर्ड, लेट सपोज एंड, बट, दो, दीज वर्ड्स आर नोन एज कंजंक्शंस। लेट सपोज हमारे पास वी हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वही कंजंक्शन जो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, स्टिल वही कंजंक्शन अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगेन दीज वर्ड्स आर फिक्स्ड, और देयर आर आर्टिकल्स, लेट सपोज ए एंड द। ये हमारे पास आर्टिकल्स जो हम पहले से पढ़ रहे हैं वही आर्टिकल्स स्टिल यूज़ हो रहे हैं। और keep in your mind, these articles are also known as determiners, or they are also known as adjectives, or we can say that they are part of adjectives. At last we have at the end we have interjections. Let's suppose alas or brow. Here I have put asterisk, so it means that interjections may be developed, or new interjections may become part of English dictionary with the passage of time. No matter, on one hand side we have fixed interjections. Some of them are used to deliver positive sense, positive meaning, or positive connotations. On the other hand side, some prepositions, or some interjections, they may deliver negative connotations or negative meanings. But again, these interjections may be developed, यानी इसमें नए interjection ऐड हो सकते हैं। लेट सपोज इंग्लिश में न्यू स्लैंग्स डेवलप हो सकते हैं, तो वो स्लैंग्स हम एज आ इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यानी बी स्टार्टेड द वेरी बेसिक क्लास
तो आज की क्लास का जो समरी है या आज की क्लास का जो ओवरऑल इस डिस्कशन का जो निचोड़ है वो ये है कि हम जब भी बोलते हैं, बात करते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड्स हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी से या डिफरेंट क्लासेस से हम पिकअप करते हैं और वो उन वर्ड्स को फिर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, लेट्स सपोज ये एडजेक्टिव है। तो इस बेसिस पे हम जो कैटेगरी बनाते हैं वो वैसे नहीं बनाते, बल्कि वो मीनिंग के बेस पे बनाते हैं, उन वर्ड्स के फंक्शन के बेसिस पे बनाते हैं कि इस वर्ड का फंक्शन नाउन वाला है तो इसको मैं पुट करूँगा नाउन की कैटेगरी में, इस वर्ड का फंक्शन एडजेक्टिव वाला है इसको मैं पुट करूँगा एडजेक्टिव के कैटेगरी में। तो इस तरह मुकम्मल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मकसद यही है कि हम क्या करते हैं, वर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं बट विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन, और फिर इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को हम ओपन में, दूसरे को हम क्लोज में। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट नाउन एंड वी विल स्टार्ट विद नाउन. Stay tuned and follow up my next videos. Thanks for watching.